Hello students, myself Sanjay Singh from Government Engineering College Ajmer. Student, today we will learn an topic that is counters and time delays. Uh, Counters and time delays have very important significance in microprocessor because for any two events there are sometimes required to create a delay between any two events. For example, we have to count from 0 to 10, and up for each count we have to create a delay of 2 milliseconds between each count. Then there is requirement for a delay between these every count. For that purpose, microprocessor provides some methods to create a delay between any two events. For that purpose, there is a topic we will discuss today, that is counters and time delay. Counter is designed simply by loading an appropriate number into one of the register and using increment or decrement instruction. A loop is established to update the count. After each count, it is checked to determine whether it has reached to a final number or not. Up to that, the loop will be repeated. So, for any looping or any counter or time delay, we have to initialize it first, then display the count number, then update the count, and if it is not the final value, then this process will be repeated. Time delay is a procedure that is used to design a specific delay. A register is loaded with a number, and depending on the time delay requirement, the register is decremented until it reaches to 0 by setting up a loop with a conditional jump instruction. Time delay can be created by three techniques. One is using single register. We can create a sufficient amount of delay using a single register. If the delay is required more, then we have to use a register pair, and if more delay is required, then we have to use a loop within loop technique. If the accurate delay is required, then the hardware device that is we will see in next lectures, that is timer 8254 or 8253 is used, that provides the accurate delay. These are the delay generation through a register or a register pair or some looping techniques. These are called software techniques, and for accurate delay we use hardware techniques. For example, 8254 or 8253, that is called timers. So first of all, we have to use create a delay using one register. So एक register, we already know that every register have 8 bit of size. So the maximum value in a register can be 002 FF. Means FF means 255 in decimal and FF in hexadecimal. यानी कि एक रजिस्टर जो कि 8 बिट का है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू FF आ सकती है. FF का मतलब 255. यानी कि किसी भी लूप को, एक सिंगल रजिस्टर के थ्रू किसी भी लूप को हम 255 टाइम्स रोटेट लूप करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. So we have to initialize first the register, then decrement this register and decrement up to when it reaches to 0. अगर ये 0 reach होता है, then we have to retire, otherwise the process will be repeated. For example, here is the program. For example, C रजिस्टर को हमने एज ए काउंटर बनाया है. इसके अंदर इनिशियलाइज हमने किया है FF से, यानी कि रजिस्टर इज लोडेड
C register is loaded with FF, then we have to decrement the C register, and it will be decrement up to when it is not reached to 0, यानी कि जब तक ये इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा. Now we have already seen that every instruction have some set of fixed size of length. Length depends on the size of instruction. For example, MVI C FF, तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है? 2 बाइट का है. 2 बाइट का मतलब 1 बाइट का ऑपकोड है और 1 बाइट का इसके अंदर ऑपरेंड है. तो ऑपकोड हमेशा 4 टी स्टेट का होता है, ऑपरेंड 3 टी स्टेट का होता है. तो टोटल इसके अंदर कितने टी स्टेट हो गए? 7 टी स्टेट हो गए. इसी तरह DCRC, इसके अंदर टोटल ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेंड पार्ट नहीं है, इसलिए इसके अंदर कितने टी स्टेट हुए? 4 टी स्टेट हुए. JNZ और यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस, तो इसके अंदर टोटल 2 बाइट का क्या हो गया? एड्रेस हो गया, और 1 बाइट का क्या हो गया? ऑपकोड हो गया. तो टोटल साइज इसकी हो गई 3 बाइट, और 3 बाइट के लिए यानी कि 4 टी स्टेट प्लस 3 टी स्टेट प्लस 3 टी स्टेट, यानी कि टोटल 10 टी स्टेट हो गए. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द डिले? Here is the point. To calculate the delay, first we have to know the frequency of the system. For example, system की frequency 2 मेगाहर्ट्ज है और क्लॉक पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है T इक्वल्स टू 1/f. तो अगर हमें किसी सिस्टम की क्लॉक पीरियड निकालनी हो तो T इक्वल्स टू 1/f मीन्स 1/2 मेगाहर्ट्ज यानी कि 0.5 माइक्रोसेकेंड इसकी क्या आ गई? क्लॉक पीरियड आ गई. नाउ द टाइम टू एग्जीक्यूट द MVI इंस्ट्रक्शन विल बी 70 into 0.5 यानी कि 3.5 माइक्रोसेकेंड विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. कौन सा इंस्ट्रक्शन? MVI C इंस्ट्रक्शन. नाउ टू कैलकुलेट द टोटल डिले ऑफ दिस लूप, how we will calculate? The total loop delay will be calculated like this. Total delay equals to T. T means clock period into loop की T states कितने हैं? कितने हो गए इसके अंदर? लूप के अंदर देखो ये इनिशियलाइजेशन है, ये 2 इंस्ट्रक्शन है जो कि लूप के अंदर बार बार फॉलो होंगे. तो 14 प्लस 10 10 प्लस 4 टोटल कितने हो गए? 14 टी स्टेट हो गए. और ये 14 टी स्टेट कितनी बार चलेंगे? जितनी काउंटर के अंदर वैल्यू है. तो काउंटर के अंदर वैल्यू कितनी है? FF. FF का मतलब डेसिमल में कितना हुआ? 255. तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 255 टाइम्स चलेगा. नाउ the delay will be calculated like this: the clock period into number of t states into the number of times the loop will be repeated. तो 0.5 into 14 into 255 यानी कि 1.785 मिली सेकेंड, या यूं कह सकते हैं कि 1.8 मिली सेकेंड डिले विल बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल रजिस्टर. दिस इज how the delay will be calculated. This is the delay using single register. अगर हमें इससे ज्यादा डिले चाहिए then we use register pair. तो रजिस्टर पेयर के केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे यहाँ पे BC रजिस्टर पेयर को हमने एज ए काउंटर यूज में लिया है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी. फॉर एग्जांपल 2384 is the hexadecimal value that we have to initialize in the register pair, then decrement this B register, then हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं किसको? BC रजिस्टर पेयर को, यानी कि रजिस्टर पेयर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं. तो रजिस्टर पेयर को डिक्रीमेंट करने के लिए एट ए टाइम पे या तो बी रजिस्टर के अंदर डिक्रीमेंट होगा, देन C रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको A में पहले हम कॉपी कर लेंगे ताकि उसको फिर B के साथ में और करा सकें. ये इसलिए ताकि एक रजिस्टर पेयर के अंदर हम उसको डिक्रीमेंट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर पेयर को हमने एज ए काउंटर यूज में लिया है. तो सिंगल रजिस्टर को अगर हम डिक्रीमेंट करें तो डायरेक्टली हो सकता है सिंपल DCR इंस्ट्रक्शन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे DCX यूज में यानी कि रजिस्टर पेयर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं. तो पेयर को डिक्रीमेंट करने के लिए वो फिर दोनों
को डिक्रीमेंट करेगा, इसलिए हम पहले उसको और कराते हैं b से। नाउ हाउ द डिले विल बी कैलकुलेट, this is the how this is the 9092 is the decimal value of this 2384 and here is the total number of t states यानी कि 6 plus 4 plus 4 plus 10 यानी कि 24 इंटू 9092 इंटू 0.5 यानी कि 1.109 मिली सेकेंड्स का डिले क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ए सिंगल रजिस्टर पेयर। यानी कि ए सिंगल रजिस्टर वी कैन मैक्सिमम जो डिले है वो 1.8 मिली सेकेंड का क्रिएट कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा डिले चाहिए तो हमें रजिस्टर पेयर यूज में लेना होता है और रजिस्टर पेयर के थ्रू हम फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू से हम 109 मिली सेकेंड्स का डिले क्रिएट कर सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा हमें डिले चाहिए देन वी यूज लूप विद इन लूप टेक्निक। तो लूप विद इन लूप टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे एक रजिस्टर को हमने इनिशियलाइज करा दिया और ये लूप कितने टाइम चलेगा 38H यानी कि हेक्साडेसिमल के 38 टाइम्स चलेगा। इसकी हर एक बार के लिए ये इंस्ट्रक्शन हर बार चलेगा, यानी कि दिस इज हाउ द लूप विद इन लूप टेक्निक विल बी यूज। तो टोटल जो डिले कैलकुलेट होगा वो इस प्रकार होगा, द डिले इन द लूप TL यानी कि इस लूप के अंदर जो डिले कैलकुलेट हो रहा है प्लस इनटू इस लूप के अंदर जो डिले कैलकुलेट हो रहा है। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट मोर एंड मोर डिले फॉर our requirement. This is the flow chart that how the loop within loop technique will be used. So how this is the flow chart that how the counter will be used to create a delay, or we can say it is how we have initially we have to initialize the counter, then display the value, then here is the delay that will create by a register or register pair or loop within loop technique that depends on our requirement. So this is how the delay will be created, or this is how the counters will be used to create the delay in the loop. यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बता रहा है कि फॉर एग्जांपल हमें काउंटिंग करनी है FF से 0 तक और हर एक काउंटिंग के बाद में 8CH का डिले क्रिएट करना है। यानी कि हर काउंटर के बीच में हर काउंट के बाद में कुछ डिले क्रिएट करना है। कितना डिले क्रिएट करना है ये डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन गिवन पे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिले दे दिया जाता है कि इतना डिले हर उसके अंदर काउंट के बाद में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज हमने कर लिया B रजिस्टर को, इसको डिक्रीमेंट करते गए। अब हमें हर एक इंस्ट्रक्शन के हर एक काउंट के बाद में कितना डिले क्रिएट करना है इसको हमने डाल दिया C रजिस्टर में। तो ये जो C रजिस्टर है दिस विल क्रिएट द डिले बिटवीन एवरी काउंट, और ये काउंट कब तक चलेगा जब तक ये 0 नहीं आ जाता। सो दिस इज हाउ द डिले विल बी क्रिएटेड बिटवीन ईच काउंट। होपफुली you have understand the how the delay will be created in 8085 microprocessor. Thank you so much.